Hello friends, today we will discuss the partial derivatives of higher orders. We have already discussed the partial derivatives, the basic about the partial derivatives, and then after we will discuss in Euler's theorem of homogeneity. In the Euler's theorem, we will discuss the homogeneity, how we will check the homogeneity, and then after we will solve Euler's theorem and related problems. Now, the today's topic is partial derivatives of higher order. Partial. So, in this lecture, we will just elaborate how the question arises from partial derivatives in higher orders. So, for this, let us suppose z equal to f of x y be the function of two variables. What we have taken? We have taken z equal to f of x y with a function of two variables, and del z upon del x, we have already discussed the partial derivatives with respect to x. Here just we give the brief idea about the partial derivatives. Del z upon del x means partial derivatives, partially differentiate with respect to x. Del z upon del y means partial derivatives with respect to y. Now, second order partial derivatives, that is point number 1, del by del x of del z upon del x. Suppose this one, again we will differentiate this part with respect to x, and it can be written as in the form of this del square z upon del x square. So this is the format of second order partial derivatives with respect to x, and it can be also written as like this del square f upon del x square or f of xx, like this. Means partial derivation with respect to x second times. Similarly, partial derivatives with respect to y is written as del by del y of del z upon del x. Suppose this one. So it is del square z upon del y del x, like this. It represents as like this del square z upon del y del x. That implies del square f upon del y del x, or this can be written as like this also y of f of yx. So this is the format of presentation like this f of y of x. तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं. सपोज कीजिए इस नोट दैट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स का मीनिंग डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये दोनों का मीनिंग जो होता है वो इक्वल होता है. डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स वाई एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट वाई के रिस्पेक्ट में, या एक्स देन वाई, तो ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एफ ऑफ वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्या कि दोनों का नोटेशन क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा. सिमिलरली डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर y के रिस्पेक्ट में हो तो भी आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट मीन्स डेल वाई स्क्वायर मीन्स एफ ऑफ y. तो इस तरीके से नोटेशन वाइज हम लोग देखते हैं कि हायर ऑर्डर के केस में यहाँ पे दिखाते हैं. अब आइए इस पर रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं कि हाउ वी विल प्रोसीड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर.
So in this sequence we will take example related to partial derivatives of higher order. So problem is if u equal to e to the power x y z, see if u equal to e to the power x y z means three variables of arising x y z, find the value of del cube z upon del x del y del z. तो देखिए इस तरीके से हायर ऑर्डर और पार्शियल डेरिवेटिव्स के टर्म्स में किस तरीके से क्वेश्चन है कि इफ u इक्वल टू e टू द पावर x y z देन फाइंड द वैल्यू ऑफ del cube z अपॉन del x del y del z. सॉल्यूशन हियर गिवन u इक्वल टू e टू द पावर x y z, u इक्वल टू दिया हुआ है आपको e टू द पावर x y z. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू z, लास्ट वाले से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू z. पहले लास्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस केस में. सो डेल u अपॉन डेल z मीन्स डेल y डेल z ऑफ e टू द पावर x y z. हमने क्या किया, इस जो गिवन रिजल्ट था उसको पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू z कर दिए. नाउ व्हेन वी पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z, दैट मीन्स कि x and y with a constant. So in this case it becomes e to the power x y z, then del by del z of x y z. तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किया, एक्सपोनेंशियल क्या कर लिए, डिफरेंशिएशन. सो इट बिकम्स e to the power, डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x is e to the power x, so e to the power x y z as it is. Then after del by del z of x y z, अब हमको पावर को करेंगे इस रिस्पेक्ट में. So it becomes e to the power x y z, and when we partially differentiate with respect to z, that means x y with a constant, so x y should be outside, and the partial derivation with respect to z is 1, so it is e to the power x y z of x y. तो डेल u बाई डेल z का मीनिंग हम लोग समझ गए कि e टू द पावर x y z ऑफ x y हम लोगों को मिल रहा है. देन आफ्टर द सेकेंड पार्शियल फॉर्म इज y. सो अगेन दिस रिजल्ट डिफरेंशिएट विथ पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y. तो अब देखिए इसी रिजल्ट को जो है ना y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. अगेन पार्शियली differentiate with respect to y, we get, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, देखिए डेल इन द लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम्स डेल बाय डेल y ऑफ डेल u अपॉन डेल z, एंड इन द राइट हैंड साइड बिकम्स डेल बाय डेल y ऑफ e टू द पावर x y z ऑफ x y. सो वी विल जस्ट वी राइट डाउन द पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू y. उस फॉर्म में हम लोग लिख दिए हैं. y के यहाँ भी y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए, इधर भी y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए. अब इसी रिजल्ट को पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए y के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ से, एक्स वाई डेल वाई ऑफ e टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस e टू द पावर एक्स वाई जेड देन डेल वाई ऑफ एक्स वाई. तो देखिए प्रोडक्ट फार्मूला के टर्म्स में हम लोग लिख दिए हैं. u इंटू वी का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि डी वाई, सपोज डी वाई ऑफ u भी u डेल u y ऑफ u भी प्लस भी डेल वाई ऑफ u. तो इस तरीके से हम लोग देखिए ये u इंटू वी के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे. सो दिस इज u, दिस इज v. सो सिमिलरली राइट डाउन इन द प्रोडक्ट फॉर्म. तो इस तरीके से वी विल गेट y ऑफ e टू द पावर एक्स वाई जेड, और फिर एक्स वाई जेड को करेंगे y के रिस्पेक्ट में, सो इट बिकम्स एक्स जेड प्लस e टू द पावर एक्स वाई जेड. y के रिस्पेक्ट में करेंगे x कांस्टेंट हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा.
जब आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स कीपिंग x एज ए कांस्टेंट, सो x शुड बी आउटसाइड एंड y को y के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स द वैल्यू इज 1. तो इस तरीके से है we will get x square yz of e to the power x yz plus x of e to the power x yz. So इस तरीके से हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर लिए, z के रिस्पेक्ट में कर लिए, अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे इस रिजल्ट को. So again differentiating this step with respect to x. Again partially differentiate with respect to x, we get, so it becomes del by del x of del square z upon del y del z. तो पहले से ही है लेफ्ट हैंड साइड में. Here del by del x of x square y z of e to the power x y z plus del by del x of x of e to the power x y z. तो इस तरीके से ये फॉर्मेट आ गया आपका रिजल्ट के केस में. नाउ सिमिलरली प्रोडक्ट फॉर्मूला यहाँ भी यूज कीजिए. इट बिकम्स एक्स स्क्वायर वाई जेड डेल वाई डेल एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस ई टू द पावर एक्स वाई जेड डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. Now the second part, x of del by del x of e to the power x y z plus e to the power x y z del by del x of x. So this is the second part. On simplifying this, तो इस तरीके से हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हम लोगों को मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और राइट हैंड साइड में हम लोगों को मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने पे. सो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई जेड एज इट इज ए टू द पावर एक्स वाई जेड एज इट इज. देन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एक्स वाई जेड को अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करेंगे तो वाई जेड कांस्टेंट होगा, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा. सो इट इज वाई जेड प्लस here e to the power x y z as it is. Then x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y z तो कांस्टेंट हो गया, शुड बी आउटसाइड, एंड x स्क्वायर इज बिकम्स 2x. सो दिस इज द partial differentiation with respect to the first part of the product. Now the second part, x as it is del by del x of e to the power x y z, e to the power x y z as it is, differentiation with respect to x of y z x y z, it becomes y z plus e to the power x y z and this is 1. तो इस तरीके से देखिए ये सेकेंड पार्ट हो गया आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का और ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका. एंड जस्ट वी अरेंज इट एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर. अब इसको थोड़े से सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वी विल गेट द रिजल्ट. तो सिंप्लीफाई जब कीजिएगा सो इट बिकम्स ए टू द पावर एक्स वाई जेड ओवरऑल. सो द रिजल्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑल्सो जेड स्क्वायर ऑल्सो. Then after 2x y z, here also e to the power x y z common, x y z plus 1. So finally we will get x y z overall common and the result becomes 1 plus x square y square z square plus 3xyz. Plus 1 here. So this is the answer. इस तरीके से हम लोग देखें कि पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर के प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर. आइए हम लोग देखते हैं एक और प्रॉब्लम लेकर के और पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं. सो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर.
So the problem is, if y equal to f of x plus 80, f of x plus 80 plus g of x minus 80 satisfies del square y upon del x square equal to a square of del square y upon del x square. तो देखिए इस रिजल्ट को बोल रहा है सेटिस्फाई करने के लिए. सो इट इज द क्वेश्चन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर में क्वेश्चन है आपको दिया हुआ. सॉल्यूशन, सिंस y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 80 प्लस g ऑफ x माइनस 80, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ पार्शियली, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो differentiate equation 1 partially with respect to x, we get. तो देखिए इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे. सो व्हाट वी गॉट, एंड वी गॉट del y अपॉन del x इक्वल टू f डैश x प्लस 80. देन पार्शियल डेरिवेशन ऑफ x प्लस 80 is 1 plus g dash of x minus 80, and then the value of x minus 80 is 1. तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या किए, पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करने पे क्या हम लोगों को रिजल्ट मिल गया. वी विल गेट, सबसे पहले f को किए हैं. सो वी गेट f डैश x इज x प्लस 80. देन x प्लस 80 को करेंगे तो x प्लस 80 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा. सिमिलरली g बिकम्स g डैश ऑफ x माइनस 80 एंड x माइनस 80 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में. तो इस तरीके से हम लोगों को मिल गया. नाउ सेकेंड ऑर्डर, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. फिर से x के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे इस रिजल्ट को, वाई वी हैव डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट था उसमें मुझे ड्राइव करना था डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के केस में. तो रिजल्ट आ जाएगा आपका, तो हियर आई थिंक, सो दिस इज द मिस्टेक, आई थिंक del square t, sorry, del y by del square t equal to a square of del square y upon del x square. So it is question. So in the right hand side we will see with respect to x square. तो x, तो again differentiating partially with respect to x, तो del square y upon del x square equal to, इस रिजल्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डबल डैश x प्लस 80 again g double dash of x minus 80, g double dash of x minus 80. So this is the equation number second. तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि जो गिवन पार्ट था कि y इक्वल टू f ऑफ x प्लस 80 प्लस g ऑफ x माइनस 80, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरीके से ये रिजल्ट मिल गया. देन अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये सेकंड पार्ट हम लोगों को मिल गया. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसी u वाले रिजल्ट को x के रिस्पेक्ट में हम लोग काम करेंगे. नाउ partially differentiate with respect to t. t के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, del y अपॉन del t, del y अपॉन del t मिल जाएगा.
तो देखिए यहाँ पर सेम उसी तरीके से यूज़ करेंगे, इट बिकम्स एफ डैश एक्स ऑफ ए प्लस ए टी। चूँकि टी के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स प्लस ए टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस जी डैश एक्स माइनस ए टी एंड देन माइनस ए। तो इस तरीके से हम लोगों को रिजल्ट मिल गया आपका। हमने क्या किया है, टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है, मीन्स दैट सबसे पहले एफ का कीजिएगा, इट बिकम्स एफ डैश एक्स, फिर x प्लस ए टी का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ए टी को टी के रिस्पेक्ट में करना है, मीन्स a आउटसाइड आ जाएगा, t को t के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। सिमिलरली सेम उसी तरीके से माइनस ए आ जाएगा। अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस ए टी, और अगेन वी विल गेट ए, सो ए मिल करके ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। सेम उसी तरीके से जी डैश ऑफ एक्स माइनस ए टी, और यहाँ पर माइनस माइनस फिर से ए मिल जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट हम लोगों को मिल गया ए स्क्वायर। इसको हमने क्या देखा कि डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी डबल डैश, हियर इज ऑल्सो जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी ऑफ ए स्क्वायर। तो आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस ए टी प्लस जी डबल डैश ऑफ एक्स माइनस ए टी एंड ए स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिएगा इस केस में, इक्वेशन थर्ड वाले में, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, हियर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज गिवन, सो ए स्क्वायर। अब ये इस रिजल्ट को आप कोट किए होंगे इक्वेशन 2 में, इट इज डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर का वैल्यू प्रूव्ड हो गया। So this is the another problem number 3 of partial derivatives of higher order. If u equal to log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, then prove that del by del x plus del by del y plus del by del z of whole squared u equal to minus 9 divided by x plus y plus z of whole square। तो ये देखिए ये प्रॉब्लम है आपका, क्या प्रॉब्लम था, दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम। If u equal to log of x cube y cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, then prove that del by del x plus del by del y plus del by del z of whole square u equal to minus 9 divided by x plus y plus z of whole square. Proof. Since given log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz ये दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे क्या करेंगे, पहले दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लॉग का हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हमने क्या किया है, सबसे पहले लॉग को कर लिए, लॉग का हो गया आपका 1/x, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x के फॉर्मेट जाता है, सो इट बिकम्स 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, देन डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ऑफ दिस इज
3x square y and z with a constant. This is 3 minus of 3 yz because we differentiate partially with respect to x. तो 3yz कांस्टेंट हो जाएगा, x को x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और वाई क्यू का वैल्यू 0 हो गया, जेड क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो देखिए इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा. तो क्या मिल गया हम लोगों को 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड. तो इस तरीके से हम लोग देखें कि x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किस तरीके से करते हैं. अब हम लोग सेकंड को करेंगे नहीं, सिमिलरली हम लोग इसी फॉर्मेट में यूज करेंगे. Therefore, similarly, partially differentiation with respect to y के रिस्पेक्ट में करेंगे. देखिए x के रिस्पेक्ट में किए थे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आ गया, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 ऑफ वाई स्क्वायर. x के रिस्पेक्ट में किए थे तो यहाँ पे देखिए x मिसिंग है, वाई जेड है यहाँ पर. y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x जेड आ जाएगा. एंड डिवाइडेड बाई, तो लॉग का फॉर्मेट है सेम, माइनस 3x वाई जेड. तो देखिए इस तरीके से हम लोग डेल यू अपॉन डेल वाई का मीनिंग भी निकाल लिए. एंड डेल यू अपॉन डेल जेड का मीनिंग कितना हो जाएगा आपका, इट बिकम्स 3 ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड. तो देखिए इस तरीके से हमने डेल बाई डेल एक्स का भी पार्ट निकाल लिए, डेल बाई डेल वाई का भी मीनिंग निकाल लिए, डेल बाई डेल जेड का भी मीनिंग निकाल लिए. तीनों का हम लोग डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल चुके हैं. अब क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रूविंग पार्ट है तीनों को ऐड कीजिए. तो ऐड करिए अब तीनों पार्ट को. ऑन एडिंग ऑल दिस, on adding del by del x, del u by del y and del u by del z we get, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, del u by del x प्लस del u by del y प्लस del u by del z. तो देखिए तीनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, सो वी विल पुट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड एंड ओवरऑल 3 इज कॉमन. तो 3 कॉमन हो जाएगा. तो यहाँ फर्स्ट में जो हम लोगों को मिल गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस सेकेंड पार्ट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड एंड थर्ड पार्ट इज जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई. सो वी विल गेट 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड. तो इस तरीके से देखिए हम लोग ऐड जब किए हैं तो वी विल गेट लाइक दिस. इस फॉर्म में हम लोगों को कन्वर्ट हो गया. अब इसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी अलजेब्रा से हम लोग जानते हैं. तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, दिस रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स को आप इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं. इस रिजल्ट को अलजेब्रा के अलॉन्ग में दिस इज 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स एंड हियर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जूनियर क्लास से ही. इट बिकम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. सो दिस पार्ट शुड बी कैंसिल. तो क्या मिल गया हम लोग को, 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड का मीनिंग क्या हो जाएगा आप लोग को, ये रिजल्ट आ गया ना. तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड का मीनिंग कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड. नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड
बाय डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड। अब हम लोग दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा यहाँ पे, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड का होल स्क्वायर मिल जाएगा u, एंड इन द राइट हैंड साइड बिकम्स डेल बाय डेल एक्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इस तरीके से हम लोग दोनों तरफ क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए। इधर मल्टीप्लाई अगर करेंगे, जैसे इस वाले पार्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस, तो मैंने बस उस पार्ट को लिखा है। सेकेंडली एंड द लास्टली, सो 3 पार्ट में ये कन्वर्ट हो गया। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इट बिकम्स -3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑफ होल स्क्वायर। अगेन इट बिकम्स -3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑफ होल स्क्वायर प्लस -3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑफ होल स्क्वायर। वो किस तरीके से हो गया, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 शुड बी आउटसाइड डेल बाय डेल एक्स ऑफ 1 बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, तो आप 3 ऑफ डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑफ होल टू दी पावर -1, तो -1 के पूर्व में लिए हैं, सो इट बिकम्स 3 ऑफ -1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू दी पावर -2, it becomes -3 by x plus y plus z of whole square. That's why we have written like this. So overall it becomes -9 divided by x plus y plus z of whole square. So this is the right hand side proof. तो आज हम लोग देखें क्या कि पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू।